Hello students, now I will discuss with the students of 11th class. Subject is political science and our topic is judiciary. Means it is now we have to work three subparts of the judiciary which remain as in our earlier chapter, in our earlier discussions we discussed the habeas corpus and the mandamus, which are the two types of this writ. As the writ is concerned, writs are of five types, and writ is a provision when any one of the fundamental right is violated by any agency, any group of an agency, any government, any court. There is a provision of writ in the judiciary of, in the constitution of the India, and जो है वो उसके तहत हम उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है कि कभी अगर किसी के वो जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, and there is a provision of writ in our constitution. Suppose we discuss it that if we are illegally, if someone body is illegally detained by some official, by some group of individual, and there is a provision of habeas corpus writs on the basis of which that illegal detention is illegal detention by the cops, that individual is set free. And he can available there is a availability of writ in our constitution, and as per that it he can be set free. Then there was a mandamus, that was another to command to some group, to command on certain tribunals under the lower courts. कोई भी कोर्ट जो है अपने lower courts को, अपने tribunals को, which is authorized by the Parliament of India to issue writs. तो as per the mandamus वो जो है कमांड दी जाती है किसी भी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपना काम करे. मीन्स अगर कोई किसी चीज़ जिसके लिए who is meant, suppose the Department of Electricity or Department of Hydraulic is not performing his duty at, suppose the teacher community is not working as per the norms, what the education department have to done for the development of country, that is not done by the agencies, that is not done by those individuals who have to do that work. Means there is a provision of mandamus that the court will issue the mandamus to that organization, suppose that department for the smooth functioning. Then comes prohibition. Suppose we have studied the habeas corpus. Habeas corpus is the first. Habeas corpus, second was mandamus. Mandamus. The third is prohibition. Prohibition. Fourth is quo warranto, and fifth is certiorari. These are the types of the writs. अब हम डिस्कस करेंगे प्रोहिबिशन को. जहाँ तक प्रोहिबिशन का ताल्लुक है, प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड, किसी को रोकना. टू फॉरबिड, किसी को रोकना. हैबिट, प्रोहिबिशन, हैबिट करना किसी चीज़ को, मतलब हम बोलते हैं कि वो मना है. मना कब होता है करना? व्हेन द प्रोसीडिंग्स आर देयर इन ए कोर्ट. सपोज देयर आर प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, और उस समय क्या होता है कि जो हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोहिबिट करेगा अपने मातहत कोर्टों को. मीन्स सपोज इफ वी कैन टॉक ऑफ सुप्रीम कोर्ट, he can provide if a proceeding is there in a high court, and if the individual who has approached the court
if he thinks that the court will not give full this chance, full satisfactory decision according to him, he will approach the higher court. उस समय वो अगर किसी को, सपोज कोई एजेंसी है, कोई इंडिविजुअल है, उसकी प्रोसीडिंग्स कहीं चल रही हैं, तो उसे ये लगता है कि ये जो है डिसीजन अच्छा नहीं होगा, या तो ये इस डिसीजन का उल्लंघन करते हैं, ये इस एहल नहीं है, तो वो अप्रोच करेगा इससे हायर कोर्ट को कि ऐसा मसला है, वो जो है उसके तहत हायर कोर्ट जो है प्रोहिबिशन रिट जो है दे सकता है उस एजेंसी को, उस बंदे को। मींस दिस प्रोहिबिशन, सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट कैन प्रोहिबिट द लोअर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स एंड जुडिशियल ऑफिसर्स। मींस जो भी ऑफिसर है जिसको अथॉराइज किया गया है किसी डिसीजन के लिए, सपोज अगर वो डिसीजन मींस उसमें कहीं फर्क पड़ता है, प्रोहिबिशन मींस व्हेन प्रोसीडिंग्स आर देयर, अभी कोर्ट के अंदर है, डिसीजन नहीं हुआ है, उससे पहले ही दूसरा अप्रोच करके जो है वो हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है और उसे जो है लोअर कोर्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है, तो वो उस समय हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोहिबिशन रिट इशू कर देता है उस लोअर कोर्ट के खिलाफ। ये तब होता है या तो कोई अपनी पावर्स, अपनी जुरिडिक्शंस को एक्सीड कर गया। सपोज अगर हम बात करते हैं कि एक हमारा लोअर कोर्ट जो है एक सबऑर्डिनेट कोर्ट है जो उन प्रोसीड, उसका जुरिडिक्शन जो है इज विद द केस अप टू 5000 एंड दैट सबऑर्डिनेट कोर्ट इज listening a proceedings of a case whose limit is more than that of 10,000, it means वो गलत है। हालांकि वो जो है सिर्फ 10,000 तक का मामला कहीं पे होगा या 5,000 तक का होगा, वो उसी को सुन सकता है, उसकी जुरिडिक्शन, उसका एरिया सिर्फ 5,000 तक का सुनना है। सपोज वो सबऑर्डिनेट कोर्ट 10,000 के केस को सुन रहा है, इट मीन्स दैट इज not good, that exceeds the jurisdictions, वो अपनी उनको ज़्यादा कर लेता है। या तो एक हम सपोज हम एक करेंगे कि हमारा एक तहसीलदार जो है वो स्टेट सब्जेक्ट को इशू कर सकता है, बैकवर्ड को वो इशू नहीं कर सकता है। मींस बैकवर्ड जो है इससे ऊपर वाली अथॉरिटीज को है, तो अगर एक नीचे वाला ही जो है ऑफिसर, एक लेवल जो अथोराइज नहीं है, तो अगर वो किसी सर्टिफिकेट को इश्यू करता है तो वो जो है उसका लिमिट में नहीं होता है, वो अपनी पावर्स को एक्सीड, अपनी जुरिडिक्शन को एक्सीड करता है। जुरिस्डिक्शन अपनी को एक्सीड करने से कहीं कोर्ट के अंदर एक वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि हम रिट ले सकते हैं, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। और ये सपोज ऐसा भी मसला है, इफ दे एक्ट अगेंस्ट द रूल, मतलब कहीं पे ऐसा है कि उन्होंने सज़ा दी है, उसकी वो जो है सज़ाए मौत है, डेथ सेंटेंस है, तो वो ऐसा नहीं था, तो उसके लिए भी वो जो है स्टे ऑर्डर ला सकते हैं। मींस हम प्रोहिबिशन को स्टे ऑर्डर, एंड स्टे ऑर्डर जो है वो इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट कुछ भी गलत हो जाता है और वी कैन ब्रिंग स्टे। कोई भी इंडिविजुअल जो होता है बोलते हैं उसकी ट्रांसफर हो गई, उसने स्टे लाई, उसका वहाँ से ऐसे हो गया, उसने स्टे लाया। स्टे मीन्स टू प्रोहिबिट, एंड व्हेन एवर एक्चुअली प्रोहिबिशन मीन्स स्टे ऑर्डर लाना। जिस समय आप स्टे लाते हैं, एंड स्टे भी तभी मिलता है देयर इज प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ देयर इज ए इलीगलिटी देन स्टे जो है वो रिट की दे सकते हैं। तो इसलिए प्रोहिबिशन जो है इट कैन बी एक्चुअली इट मीन्स द स्टे। फिर देन कम्स दिस क्यो वारंटो, देन कम्स क्यो वारंटो। तो क्यो वारंटो मीन्स क्यों, क्यों मीन्स क्यों, हम समझ लेंगे उर्दू का क्यों।
क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है। सपोज क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है खुद ही बैठ जाता है किसी चेयर पे, तो वो बोल देगा, और वो जो है अपने आप को समझता है कि मैं इस चेयर का, सपोज ऑफिशियल, एनी ऑफिशियल इन गवर्नमेंटल एजेंसी और प्राइवेट एजेंसी is not authorized to make signature on a seal। तो कभी कभार क्या हो जाता है कि फ्रॉड सिग्नेचर्स करके किसी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो अथोराइज्ड पर्सनैलिटी है किसी चीज को इश्यू करने के लिए, उसकी जगह उसे दूसरे वाला उस पर साइन कर देता है। तो वो साइन कर देता है तो उसकी इलीगलिटी को प्रूव करने के लिए या उसकी लीगलिटी को प्रूव करने के लिए, suppose whether the signatures are legal or illegal, whether the employees working in that post is eligible or not। suppose दूसरा भी एग्जांपल हम ले लेंगे कि वो जो है एक इंडिविजुअल जो है एक इंडिविजुअल की सिलेक्शन जो है वो हम एक सरकारी वकील के तौर पर करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट इज गोइंग टू अपॉइंट एन एडवोकेट, only advocates are eligible for that post। Suppose a person who does not have a degree of advocacy, he is not advocate, but despite of that he is appointed in that for that post, उस ओहदे के लिए in that office the individual who is not eligible, means the criteria for selection, what was the criteria for the selection? Means that individual was not eligible, but despite of that individual is selected for that, it means the quo warranto। as a result of that in agency and organism can go and bring get the this quo warranto writ from the courts। कोर्ट में जाएगा and court can issue the writ, एक रिट दे देगा उस ऑफिशियल के लिए कि उसे क्या करना है जिसने इलीगल लिया है। अगर इलीगली नहीं लिया, अगर वो लीगल वे से है, दूसरा उसे इलीगल समझता है, इलीगलिटी एंड लीगलिटी इज कंफर्म्ड बाय द कोर्ट आफ्टर इशूइंग द रिट ऑफ क्यो वारंटो। तो आप इससे समझ गए कि कोई इंडिविजुअल जो उस ओहदे के लायक नहीं था या वो उस ओहदे के लायक था लेकिन दूसरे आदमी ने कोर्ट में अप्रोच किया और उसके खिलाफ प्रूव कंफर्म करना चाहते हैं उसकी लीगलिटी या इलीगलिटी, दैट इज कॉल्ड एज, उसी को जो है वो जो है क्यो वारंट बोला जाता है। एंड देन कम्स सर्श्योररी, उसके बाद सर्श्योररी रिट आती है। तो सर्श्योररी मीन्स जो है ये जो सर्श्योररी है इसका मतलब हम ये समझते हैं कि ऐसा है, सपोज ए कोर्ट इज आस्किंग लोअर कोर्ट्स टू सर्टिफाई हाउ इट इज डीलिंग विद दिस केस पेंडिंग अगेंस्ट इट। सपोज कोई केस है, किसी कोर्ट में कोई केस है, तो उसका ऊपर वाला कोर्ट जो है, ए पर्सन विल अप्रोच टू द हायर कोर्ट against that court which whose proceedings are there in a lower court। Suppose there is a subordinate court, an individual against him can go and approach to the district court। Suppose proceedings are there in a district court and a person against that case will go and approach to the high court। If the proceedings are there in a high court and the person, any citizen will go and approach to the Supreme Court for the legality or illegality, दोबारा से उसको जो है वो जो केस को डील करता है वो इसकी केस पेंडिंग क्यों है। अगर पेंडिंग है तो ये क्यों है सर्टिफाई करो कि इट इज वो जो है अनडिसाइडेड टिल डेट, और ये अगर ऐसा है तो वो सर्टिफाई करे कोर्ट कि ये ऐसा क्यों है। अदरवाइज कोर्ट इसे बोलता है कि आप इसको हमारे पास भेज दीजिए। सर्शरी और इसमें जो है प्रोहिबिशन में ये फर्क है कि क्यों वारंट और प्रोहिबिशन में ये फर्क था कि प्रोहिबिशन में कोर्ट प्रोसीडिंग थी,
तब होता है, और ये जो हमारा क्यों वारंटो जो है डिसीजन देने के बाद होता है। और जहाँ तक सर्शोरी का बात है, ये जो है तब दिया जाता है जब इस पे कोई कोर्ट जो है वो इस एहल नहीं होता है जो कोर्ट में। नेक्स्ट जो है इसका है प्रोहिबिशन इज ओनली प्रिवेंशन। ये जो है ये फर्क है वाई सर्जरी। ये सर्जरी क्यों होता है? चूंकि हमारे ये इस मना पर होता है। सर्जरी रिट तब दी जाती है जब इसमें प्रोहिबिशन जो बेसिकली जो है हायर कोर्ट इज आस्किंग द लोअर कोर्ट्स टू सर्टिफाई। अब पहले में जो था प्रोहिबिशन तब होगा जब केस चल रहा है, फिर क्यों वारंट तो तब होगा जब केस का डिसीजन होने के बाद होगा। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? जो प्रोहिबिशन और क्यों वारंटो है, तो इसमें वो जो है सर्जरी जो है ये ऐसा क्यों होता है? वो कोर्ट जो है इसमें बोलते हैं कि ये जो है केस को ट्रांसफर करो या आप सर्टिफाई करो। इसमें या तो सर्टिफाई करना है लोअर कोर्ट को कि हमारी प्रोसीडिंग्स जो ऐसे हैं उसने पहले ही सर्टिफाई कर देना है, या तो उसने इंफॉर्मेशन देनी है कि मतलब लोअर कोर्ट ऊपर वाले कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा या सर्टिफाई करेगा, या तो उस केस को ट्रांसफर कर देगा उनको। मीन्स अगर ऐसा सर्टिफाई नहीं कर सकता तो वो इस केस को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये हमारे जो थे ये प्रोहिबिशन, क्या वारंटो एंड सर्जरी, दीज वर दी सर्जरी रिट्स जो थी जिनका लाभ ले सकता है, कोई जिनका फायदा उठा सकता है। तो बाय दिस हमारा ये जो टाइप्स ऑफ रिट्स कंप्लीट होती हैं, और ये आपके लिए एनफ है। तो ये हम नया चैप्टर ला के जो है अब हम नेक्स्ट जो है दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। तो थैंक्स।